In the previous class, we have discussed about the pursuing problem, and the classes before the previous classes. In those classes, we have discussed something about the random numbers generation. So, what are the methods for the random number generation? So, there are so many methods for the random number generation, or I can say pseudo random number. The word pseudo means false. We are generating the random numbers by some logic. है ना, यदि कोई हमारा लॉजिक प्रिडिक्ट कर लेगा, then he can replicate those random numbers. है ना, that's why these are false random numbers. है ना, but in a solution of the real life and industrial problems, these pseudo random numbers are quite useful. So we have discussed one method. The name of the method is midpoint square. One method is midpoint square. रैंडम नंबर जनरेशन, है ना। क्या करते थे इस मेथड में? हम स्क्वायर करते थे। स्क्वायर करने के बाद में लोअर ऑर्डर हायर ऑर्डर डिजिट्स आर रिमूव्ड, देन वी टेक द मिड वैल्यू एंड दैट इज द नेक्स्ट रैंडम नंबर इन दैट सीक्वेंस, एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड. अदर मेथड्स, so one method we have discussed, that is congruence method. So congruence operator are of three types. What are the names of those three? So one is mixed type, one is multiplicative type, and last one is additive type. Additive type. So in mixed type random number generator, what is the formula? So formula is given by Ri plus 1 equal to Ari plus B mod n. This is the formula for mixed. What is the formula for multiplicative? कौन बताएगा? Multiplicative का formula Ri plus 1 equals to I plus 1 equal to Ari बस. Ari mod n. Mod n. Very good. And the formula for the additive type is Ri plus 1 Ri plus P mod m. Very good. So these two methods we have covered in the previous classes. Today we are going to discuss the third method. So name of the third method is arithmetic congruence. क्या नाम है मेथड का? Arithmetic congruence generator. Arithmetic congruence generator. In this method, the formula is Ri plus 1 equal to Ri minus 1 plus Ri mod n. ठीक है? So Ri is ith random number. I minus 1 means I minus 1th random number. Then you can find the I plus 1th random number. So suppose let I equal to 2. So if I equal to 2 means 2 plus 1 is 3. So you can find the third random number R3. 2 minus 1 is R1 and R2 mod m. So if R1 and R2 is available, then you can find R3. If R2 and R3 available, then you can find R4 and so on. So in this way, you can generate the random numbers. So we will take one example for this. So I am giving you some initial values, then you have to calculate the further values, at least 10 values by arithmetic congruence method. So let the first random number is given, R1 is given 9, R2 is given 13. This is the example for arithmetic congruence.
example for the arithmetic. So R1 is given, R2 is given. Find 10 random numbers by arithmetic congruence method. Arithmetic congruence method. ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहली जो मेथड नंबर है, 1 by 1 बताते रहिए, है ना. सचिन शर्मा इज हियर. यस सर. चलिए आप बताइए थर्ड रैंडम नंबर क्या होगी. सर m की वैल्यू भी तो गिवन होगी इसमें. हाँ, m की वैल्यू मॉड जो है वो हम दे रहे हैं आपको 70, है ना. मॉड इज 70. तो फाइंड R3. 5 आएगा सर. 9 plus 13 22. mod 17, है ना. So it हाँ is सर. 22 mod 17. 5. So what is value? 5. 5. Yeah. So आपकी रैंडम नंबर में लिस्ट कर लेते हैं. तो फर्स्ट इज 9, then next is 13, then next is 5. So 5 is given by Sachin Sharma, है ना. Now the next number has to be told by Rohit Kumar Singh is here. सर मैं लास्ट क्लास में सर था नहीं, तो सर मॉड कैसे निकालेंगे सर? हाँ, मॉड ऐसे निकलता है जैसे 22 मॉड 17 है ना. तो 22 को 17 से डिवाइड करिए. 17 1 जा 17, द रिमाइंडर इज 5. ये रिमाइंडर, हाँ, दिस रिमाइंडर इज 5, है ना. इसी को मॉड कहते हैं. मॉड मींस रेजिड्यू, दैट इज द रिमाइंडर. ओके सर. So now R4 is given by, है ना. R4, चलो वो बताइए. हेमंत परिहार इज हियर. हेमंत परिहार. चलिए प्रत्युष बताइए. व्हाट विल बी R4? यस सर. हाँ, 1 आएगा. 1. R4 is given by R2 plus R3 mod m. यस सर. जब हमें R4 निकालना है तो R4 से पहले, हाँ, so it will be 13 plus 5. R2 18. is 13. 13 plus 5 mod 17. 1 So it आएगा. is 18 mod 17. So the answer is 1. So next random number is 1. ठीक है. Now the chance is for Mohini Devi. बताइए R5. R5 is given by R3 plus R4. R3 plus R4 mod 17. देखो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल लॉजिक है. यदि R5 निकालना है तो R3 और R4 5 से पहले की दो रैंडम नंबर को प्लस करना है ना. जो भी निकाल रहे हैं उससे पहले की दो रैंडम नंबर्स को प्लस करना है और mod 17 करना है. ठीक है. तो अब आप देखें कि ये तो हमारी R1 है, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4. तो इन दोनों को जोड़िए और 17 से मॉड निकाल दीजिए. तो 5 और 1 कितना हो गया? 6. 6 मॉड 17 कितना आंसर आएगा? 6 मॉड 17 आंसर विल बी 6 ओनली. सो R5 इज 6, है ना. 6 में 17 का भाग जाएगा ही नहीं. तो जब भाग जाएगा ही नहीं तो फिर आंसर वही हो जाएगा, वही तो रेजिड्यू हो जाएगा. तो 6 विल बी द रेजिड्यू. सो 6 इज द रिमाइंडर. ठीक है. सो 9 13 5 1 6. अब नेक्स्ट बता दीजिए जरा. 7. 6 plus 1 7. 7 mod 17, 7 ही आ जाएगा. वेरी गुड. तो R6 is 7. R7 13. आएगा सर. 13 3. 13 आएगा. हाँ सर. 13 के बाद सर 3. हाँ, 3. 13 के बाद हो जाएगा 20. 3. 20 mod 17 is 3. शाबाश. And 16. R9 सर 16. आंसर 2. शाबाश. And and R10 2. 2. वेरी गुड. तो बताओ, देखो कोई रिपीट हुई क्या? एक No, रिपीट. हाँ, मतलब एक कंटिन्यूअस No. रिपीट तो नहीं हो रहा है. कंटिन्यूअस रिपीटिशन थोड़ी हो रहा है. जैसे 9 13 5 1 6 7 13 3 16 2, है ना. कंटिन्यूअसली रिपीटिशन नहीं होना चाहिए. मतलब जैसे 9 13 5 1 9 13 5 1, इस तरह की रिपीटिशन आर नॉट अलाउड, है ना. वो फिर रॉन्ग डिजिट्स देते हैं.
सो मेरे ख्याल से ये मेथड क्लियर हो गई होगी, अर्थमेटिक कॉन्ग्रुएंस आप सभी को, है ना। Yes, कभी sir. कभी न्यूमेरिकल्स, छोटे न्यूमेरिकल्स एक एक दो दो नंबर के आ जाते हैं कि जनरेट 10 रैंडम नंबर्स बाय दिस मेथड, और है ना कोई भी मेथड से आ सकता है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर लिखा दिख रहा है क्या? प्लीज मूव दिस विंडो, या मुझे ही दिखता है ये लिखा Yes, हुआ? sir. दिख रहा है सर. तो दिख दिख रहा रहा है। है। ये क्यों आता है, मतलब किस किस ऑप्शन की वजह से आता है? एनी आइडिया? No, sir. मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करता हूँ। हाँ बताइए। मैं काफी इसको देख रहा हूँ एक दो दिन से, कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्टूडेंट इसमें कोई ऑप्शन अपना चला देता हो, है ना, मैं उसकी पावर या तो यहाँ से खत्म करूँ। आप लोगों ने देखा है और भी लेक्चर्स में आता है क्या इस तरह से? और No, तो नहीं sir. आता किसी में। जाता है। और किसी में नहीं आता है ना, तो मेरे में जो आता है, मैं तो मेरे लैपटॉप में या फिर कोई प्रॉब्लम है? एनी आइडिया, किसी को पता हो इस प्रॉब्लम के बारे में? नहीं सर। नो आइडिया है। हम्म, चलिए कोई नहीं, इसको देखेंगे इसको बाद में, है ना। चलिए मैं दोबारा से शेयर कर लेता हूँ पीपीटी। तो आफ्टर स्टडिंग द अर्थमेटिक कॉन्ग्रुएंस मेथड, तो रैंडम नंबर्स के बारे में अभी हम और थोड़ी सी बात करेंगे आज जो है। तो रैंडम नंबर्स में मान लीजिए, पीपीटी विजिबल, यस। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं क्वालिटी और प्रॉपर्टी ऑफ द रैंडम नंबर्स, है ना। क्वालिटी ऑफ रैंडम नंबर्स, है ना। मान लीजिए आपको कोई भी रैंडम नंबर का सेट दे दिया जाए, है ना, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10। मान लीजिए मैंने आपको 10 सेट्स दे दिए रैंडम नंबर्स के, है ना। तो नाउ यू हैव टू चेक द क्वालिटी ऑफ दीज रैंडम नंबर्स, कि या ये सही रैंडम नंबर है नहीं है ना। तो हमें सो मेनी टेस्ट्स आर परफॉर्म्ड फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द रैंडम नंबर्स, है ना। So there are basically two qualities. One is uniformity, and second one is autocorrelation. तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि मान लीजिए आपने जितने भी रैंडम नंबर्स हैं, है ना, सो all random numbers are having equal chances of their outcome, है ना। जैसे किसी डाइस को हमने रोल कर दिया, है ना, तो जो जितने चांसेस 1 आने के हैं उतने ही चांसेस 2 आने के हैं। सो दीज आर रैंडम नंबर्स, है ना, दीज आर रैंडम नंबर्स, वी कैन से दे आर ऑल हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ देयर आउटकम, दैट इज यूनिफॉर्मिटी, है ना। सपोज मान लीजिए मेरे पास इस तरह से कोई एक्स कोऑर्डिनेट में 0 to 1, दिस इज 0, दिस इज 1, और मान लीजिए इस तरह से मेरे पास ये रैंडम नंबर का सेट है, ये पूरा। कितने रैंडम नंबर है टोटल इसमें बताओ? इस बॉक्स के अंदर हाउ मेनी रैंडम नंबर्स आर देयर? ये जो मैंने अभी रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ABCD, इस रेक्टेंगल में कितने रैंडम नंबर्स हैं बताइए, है ना। सो इफ इट इज ए कंटिन्यूअस रैंडम 0 to 1, देन नंबर ऑफ द रैंडम नंबर्स इज इनफाइनाइट। कितनी रैंडम नंबर्स हैं? इनफाइनाइट रैंडम नंबर्स, है ना। 0 से 1 के बीच बहुत सारी रैंडम नंबर्स हैं, 0.01, 0.02, 0.003, 0.004, लाइक दिस। तो यदि मैं इस पूरे 0 to 1 के पार्ट को 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, अब इस 0 to 1 को मान लीजिए मैं जो है इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, या चलो मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। तो ये पहला पार्ट क्या हो गया? 0.33,
और दूसरा पार्ट हो गया 0.33 से लेके 0.66 या 0.67, और तीसरा पार्ट हो गया 0.67 से 1। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या हो गया, 0 to 0.33, so this is first part, correct? Second part is 0.33 to 0.67, so this is the second part. No, this one is the second part, and third part is 0.67 to 0.1. ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक रैंडम नंबर ड्रॉ की जाती है इस बॉक्स में से, तो जरा बताओ कौन से वाले पार्ट से निकलेगी, फर्स्ट पार्ट से या सेकंड पार्ट से या थर्ड पार्ट से? ठीक है, 0 to 1 के सेट को मैंने 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, 0 to 0.33, 0.33 to 0.67, 0.67 to 1। मैंने एक रैंडम नंबर ड्रॉ की। अब वो रैंडम नंबर बॉक्स नंबर 1 से होगी, मतलब फर्स्ट पार्ट से होगी, या सेकंड पार्ट से होगी, या थर्ड पार्ट से होगी? बताओ, आप लोग बताइए। सर किसी से भी हो सर सकता है। किसी से भी हो सकती है। किसी से भी हो सकती है ना, माइक म्यूट रखिए। सो किसी से भी हो सकती है, इसका मतलब आपका जो रैंडम नंबर का ये जो सेट है, इट इज यूनिफॉर्म। इसी को यूनिफॉर्मिटी कह सकते हैं, है ना? जब कोई रैंडम नंबर ड्रॉ होती है और उसके इक्वल चांस होते हैं, वो कहीं से भी हो सकती है, तब हम उससे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। और ऑटो कोरिलेशन मतलब जो मैंने अभी बताया था कि रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना, ऑटो कोरिलेशन। तो यदि दोनों प्रॉपर्टी रैंडम नंबर के अंदर हैं, देन दैट इज ए परफेक्ट सेट ऑफ रैंडम नंबर, यूनिफॉर्मिटी एंड ऑटो कोरिलेशन। तो अब इस पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और आपको उसकी यूनिफॉर्मिटी चेक करनी है और ऑटो कोरिलेशन भी चेक करना है। ठीक है, तो पहले आप एक एग्जांपल है जिसमें आपको यूनिफॉर्मिटी चेक करना है, राइट? तो चलिए एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। ये देखो, फिर ये स्क्रीन पर आया है ना, आ रहा है ना स्क्रीन पर? ये आप लोगों को दिख रहा है? Yes, sir. नोटिफिकेशन आना सर इसमें, नोटिफिकेशन लिखा है। कोई प्रॉब्लम है या तो, है ना, किसी मतलब किसी स्टूडेंट का तो नहीं लग रहा है मुझे, ये मतलब स्टूडेंट या तो कुछ नहीं करेगा कोई इसमें, कोई ऐसा ऑप्शन स्टेटस भी लिखा हुआ है ना। स्टूडेंट। हाँ, तो चलिए इसके बारे में आप लोग भी डिस्कस करना कि क्यों आता है ना, कोई हो तो फिर मुझे बताइएगा ना। चलिए मैं फिर शेयर कर लेता हूँ। सर इसके ऊपर एक बार कर्सर को करके इसको मूव करके देखिए, शायद मूव हो जाएगा जो लिखा आता है ना। देखता हूँ भी आएगा तो मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, उसको फिर आप एडजस्ट कर लीजिएगा साइड में। हाँ, चलिए तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ फॉर दी रैंडम नंबर चेकिंग। ठीक है, और इस एग्जाम्पल के बाद हम अपनी क्लास एंड करेंगे। तो एग्जाम्पल नोट करें, प्लीज चेक द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द गिवन सेट ऑफ रैंडम नंबर। प्लीज चेक द यूनिफॉर्मिटी। सो एग्जाम्पल, फॉर चेकिंग द यूनिफॉर्मिटी, है ना? तो सेट ऑफ रैंडम नंबर आपको गिवन है, उसको हम नोट कर लेते हैं। 0.24, 0.89, 0.11, 0.61, 0.23, 0.86, 0.41, 0.64, 0.50, 0.65। ये सेट दिया हुआ है। हाउ मेनी रैंडम नंबर्स आर देयर इन दिस सेट? हाउ मेनी रैंडम नंबर्स आर देयर? 10, sir. 0.24, 0.9, 0.11, 0.61, 0.23, 0.86, 0.41, 0.64, 0.50, 0.65। ठीक है, 10 random numbers are there. 10 random numbers. ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए ये नंबर 1000 रैंडम नंबर्स होते हैं, है ना, 5000 रैंडम नंबर्स होते हैं।
तो उस केस में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, फिर आपको अगेन कंप्यूटर सिमुलेशन पे ही जाना होगा। तो अगेन हम इस प्रॉब्लम को 10 के सेट पर हम कैसे चेक करेंगे। तो एक देयर इज ए मेथड, द नेम ऑफ द मेथड इज काल्मोग्रोव स्मिनोरोव, है ना। मेथड का नाम है काल्मोरोव, है ना, KALMO, है ना, स्पेलिंग इज KALMO, काल्मोगोरोव, है ना, काल्मोगोरोव एंड स्मिनोरोव टेस्ट। ठीक है, रैंडम नंबर्स की चेकिंग के लिए दिस इज ए नेम ऑफ द मेथड। तो प्रॉब्लम ऐसे आ जाती हैं, चेक द यूनिफॉर्मिटी बाय द काल्मोगोरोव और स्मिनोरोव टेस्ट। तो इस टेस्ट में काल्मोगोरोव ने क्या सजेस्ट किया, उसने 3 स्टेप बताए, है ना। पहला स्टेप बोला कि रैंडम नंबर्स को आप अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। अब ये मेथड है इसकी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू अरेंज द रैंडम नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अभी ये रैंडम नंबर क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, 0.24, 0.89, फिर 0.11 आ गया। सो दे आर नॉट अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे। सबसे छोटी कौन सी नंबर है इसमें, विच इज द स्मॉलेस्ट इन दिस सेट, 0.11 0.11, है ना। इसका मतलब 0.11 सबसे पहले आएगी। ठीक है, उसके बाद कौन सी आएगी, उससे जो ग्रेटर होगी। तो बताते जाइए। चलो मैंने 0.11 काट दिया, अब जो बची 0.23 0.23, 0.24 0.24, वेरी गुड, 0.41 0.41, 0.6 0.50 0.50, 0.50 is there, yes, 0.61 0.61 is there, 0.64 0.64 is there, 0.65 0.65 is there, 0.86 0.86 is there, 0.89 0.89, 89 is the maximum, है ना। So first step we have completed, arrange the random number in the ascending order. The second step, find I divided by n. I divided by n. Here capital N is the total number of random numbers. So in our case the total random numbers are 10. So capital N is 10. Capital N is 10. So I have to find I divided by n. अब I divided by n आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप क्या करेंगे इस सेट में, मैं थोड़ा सा इसको यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना, और मुझे ये ऑर्डर नोट करा दीजिएगा 0.11, 0.23 वाला। टेक दिस स्क्रीनशॉट, ले लिया। ले लिया, या फिर हम चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, आपने ले लिया, दैट इज गुड। तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स एक टेबल के फॉर्म में दिखाने वाला हूँ। तो आपको इसमें एक टेबल बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यू राइट I. So I changing from first random number, then second, then third, then fourth, then fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. So I changing from 1 to 10. ठीक है, 10 random numbers are there. और n equal to 10, total random numbers are 10. Then you have to arrange the numbers in the random order. तो आपने उसका क्या बनाया था, आपने रैंडम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, RI। तो सबसे छोटी रैंडम नंबर थी 0.11, और उसके बाद थी जरा बोलते जाइए क्या है, यस 0.23, देन 0.24 0.24, 0.41 0.41, 0.50 म्यूट कर लीजिए, 0.50, 0.61
0.61 बेटा किसका माइक ये खुला हुआ है? 0.64 एक सेकंड रुको, माइक किसका ओपन है? बेटा एक बार मैंने समझा दिया, आप एमटेक स्टूडेंट्स हैं और आप बिना सोचे समझे अपना माइक ऑन कर देते हैं, मतलब थोड़ा ध्यान रखिए। आप बोल भी नहीं रहे फिर भी आपका माइक ऑन है। ना, जो बोल रहे हैं केवल वो ऑन रखें अपना माइक। 0.61 के बाद का नेक्स्ट नंबर बोलिए। 0.64 0.64 0.65 ये आपके ही माइक में आवाज आ रही है मेरे ख्याल से पैरेलल में। 0.65 0.8 0.8 6 then 0.89. So these are the numbers in the ascending order, Ri. After that you have to find I divided by n. ठीक है, तो देखिए सेकंड स्टेप क्या था, I डिवाइडेड बाई n। तो I डिवाइडेड बाई n में कितनी वैल्यू आएगी आपकी बताइए? I की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 10 है, तो I बाई n कितना हो जाएगा? 1/10। 1/10 मीन्स 0.1, 2/10 मीन्स 0.2, 3/10 means 0.3, 0.4, 0.5 and so on. 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and it is 1.0. So first column for I, second column for Ri, third column for I by n and fourth column is for I by n minus Ri. I by n minus Ri. So I by n की वैल्यू क्या है? 0.1, Ri की वैल्यू क्या है? 0.11. तो you have to subtract, you have to find 0.1 minus 0.11. So 0.1 minus 0.11 will be given by how much? Minus 0.01. Minus 0.01. Similarly here 0.2 minus 0.23. So this is minus 0.03. 0.03 and this is 0.6. 0.06 है ना, it is 0.06 plus में and this is minus Minus 0.01. 01 and next is 0. 0, next is Minus 0.01. shabash, next is Plus 0.06. 0.06, next is 0.15. 0.15 and 0.9 minus 0.86 0.04. and 1 minus 0.89 0.11. 0.11 है ना। So this is our third line is over. अब इस थर्ड लाइन से हमको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। नेगेटिव वैल्यू को तो ध्यान देना नहीं है, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं उन पॉजिटिव वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताइए। थर्ड लाइन है ये, जो हमारी फोर्थ लाइन है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को ध्यान नहीं देना है, लीव इट है ना। ये पॉजिटिव है, 0.15. ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इन सभी पॉजिटिव वैल्यूज में द मैक्सिमम वैल्यू इज 0.15 है ना। सो जस्ट नोट योर कैपिटल डी इज 0.15। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन में से हमको कैपिटल डी फाइंड कर लेना है, विच इज द मैक्सिमम ऑफ द पॉजिटिव वैल्यूज। नाउ द लास्ट लाइन, सो लास्ट लाइन इज गिवन बाय, इसकी जो अगली लाइन है वो है, यहां लिख लेते हैं, आर आई माइनस आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, आर आई माइनस आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन। तो देखो आर आई की वैल्यू कितनी है? 0.11 है ना, 0.11 माइनस आई की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एन। एन की वैल्यू कितनी है? 10। क्या आंसर आया सॉल्व करके? 1 माइनस 1 0 हो गया, 0/10 0 हो गया, तो 0.11 माइनस 0, तो कुल मिला के कितना आंसर आया? 0.11। So I will write 0.11 in the first column.
ठीक है, अब सेकंड कॉलम में क्या आएगा जरा बताओ। सेकंड कॉलम में आएगा RI की वैल्यू क्या है 0.23 माइनस I की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई, यस मल्टीप्लाइड बाई कुछ नहीं, बस यही है। तो आंसर हो गया 0.23 माइनस 1/10। ये हो गया 0.23 माइनस 0.1, ये कितना आ गया 0.13। सो नेक्स्ट कॉलम आई विल राइट 0.13। अब इसका आप बताइए कितना आएगा इसी मेथड से, थर्ड कॉलम 0.04 0.0 पूरा बोला Four. करिए, एक डिजिट रुक के आप रुका मत करिए, है ना। 0.04। 0.04 हाँ, अब आप 0.0 बोल के रुक जाते हैं ना, ये ठीक नहीं है। 0.04, यस। नेक्स्ट सर 0.11 शाबाश 0.11। नेक्स्ट 0.1 शाबाश। नेक्स्ट 0.1 11 आएगा, है ना। so सर 0.11 हाँ 0.11 आ गया। उसके आगे नेक्स्ट बताओ, इसी में सेम फॉर्मूला। सर 0.04 वेरी गुड। देन नेक्स्ट नेगेटिव आ रहा होगा शायद। माइनस 0.05। हाँ, माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, तो यदि आप ना भी लिखें तो डैश लगा सकते हैं आप। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो माइनस आए थे ना ये वाले केसेस फोर्थ लाइन में, तो आप यहाँ पे डैश लगा सकते हैं। मतलब माइनस का हमें कोई यूज नहीं है, इसलिए उनको डैश भी यूज किया जाता है। कई ऑथर इनकी जगह डैश यूज करते हैं, आप बुक्स में देखेंगे तो यू विल फाइंड डैश ओवर हियर। सो हियर आई एम राइटिंग डैश। वैसे वैल्यू क्या आई है बताइए कितनी आई है माइनस में? 0.05। चलिए उसके आगे की नेक्स्ट बताओ। 0.06 और उसके आगे 0.89 माइनस में आ रहा होगा, चेक करो माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। माइनस 0.01। हाँ माइनस में आ रहा है, इसलिए मैंने डैश लगा दिया। ठीक है, और जो भी वैल्यू आ रही है वो माइनस में है, तो माइनस का लिखते नहीं है, उसको डैश लगा सकते हैं। तो आई थिंक सारे स्टेप क्लियर हो गए। मतलब देखो पहली लाइन में मैंने आई की वैल्यू को नोट किया है, सेकंड लाइन में मैंने रैंडम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में नोट किया। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में लोग यहाँ असेंडिंग ऑर्डर नहीं करते हैं, जैसी दी होती है वैसी लिख लेते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, देन फाइंड आई बाई एन, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आप डी फाइंड कर लीजिए, मैक्सिमम ऑफ द पॉजिटिव वैल्यूज। और फिफ्थ स्टेप में आप डी स्टार फाइंड कर लीजिए, है ना। इसको बोलते हैं डी प्लस और इसको बोलते हैं डी माइनस। ठीक है, दिस इज डी प्लस एंड इट इज डी माइनस। तो अब इस डी माइनस की वैल्यू क्या होगी इस पूरे में? फिर से मैक्सिमम वैल्यू देखिए। सो विच इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द लास्ट लाइन? so 0.13 0.13 is the maximum value. Yes, 0.13 is the maximum value. So d minus 1 is 0.13. तो देखिए हमने एक लाइन से d प्लस फाइंड किया, एक लाइन से d माइनस फाइंड किया, फिर इन दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा d. So d is maximum of d plus and d minus. So it is maximum of d plus means 0.15, d minus means 0.13. So what is the maximum in between these two? 0.15 0.15. Very good. So now the value of d is 0.15. करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया। अभी स्टेप चलेगा, अभी हमें रैंडमनेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था? क्वेश्चन में हमें एक सेट गिवन था, इस सेट ऑफ 10 रैंडम नंबर वाज गिवन। ठीक है, सेट ऑफ 10 रैंडम नंबर वाज गिवन। अब हमें उनकी क्या फाइंड करनी थी? रैंडमनेस फाइंड करनी थी, है ना, यूनिफॉर्मिटी को फाइंड करना था। तो यूनिफॉर्मिटी जब फाइंड की जाती है
है ना। तो एक तो होता है 100% यूनिफॉर्म, ठीक है। अब कोई भी चीज 100% आइडियल तो होती नहीं है, क्योंकि हम रैंडम नंबर जनरेटर के थ्रू जनरेट कर रहे हैं रैंडम नंबर्स को, तो किसी भी सेट में 100% यूनिफॉर्म होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस हम जाते हैं या तो 99% यूनिफॉर्म। तो जब 99% यूनिफॉर्म है, इसका मतलब हम कहते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 99% एंड द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस इज 0.01। ठीक है। तो जब अल्फा की वैल्यू 0.01 होगी, इसका मतलब हमारा 99% इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। सिमिलरली if alpha equal to 0.05, then our level of confidence is 95% and so on, है ना। if alpha equal to 0.1, then our level of confidence is 90%। ठीक है। तो या तो हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको इतने परसेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से इसकी रैंडमनेस को वेरीफाई करना है, चेक करना है। ठीक है। और यदि ना दिया हो तो आप अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं कि आपने कितने परसेंट के अकॉर्डिंग चेक किया है। तो हमारे क्वेश्चन में 95% लेवल के हिसाब से हमें चेक करना है, इट इज गिवन, है ना। चेक दिस सेट बाय 95% कॉन्फिडेंस लेवल, करेक्ट। अब 95%, 90%, है ना। तो इन सब के लिए हमारे काल्मोगोरोव एंड स्मिनोरोव ने एक क्या दिया है, टेबल दिया है। ठीक है। देयर इज अ टेबल, सो द टेबल इज गिवन इन द लास्ट पेजेस ऑफ द DS हीरा। ठीक है। DS हीरा की बुक में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं अभी स्टॉप शेयर कर दे रहा हूँ, मैं जरा दिखा देता हूँ आपको। यस, बुक इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, सिस्टम सिमुलेशन Yes, sir. DS हीरा। तो इसके लास्ट पेजेस में मैंने आपको एक दिन और भी बताया था कि सम टेबल्स आर गिवन, है ना। तो इसमें अब हमें काल्मोगोरोव वाली टेबल पे जाना है ना। तो टेबल जो है वो है रैंडम नंबर्स टेबल, टेबल 1 है। उसके बाद काई स्क्वायर टेबल है, फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल है, उसके बाद कम्युलेटिव पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, और फिर जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है, और इसके बाद काल्मोगोरोव और स्मिनोरोव क्रिटिकल वैल्यूज, इट इज गिवन पेज नंबर 294। अब देख लीजिएगा अपनी बुक में पेज नंबर 294 पर कितना विजिबल हो पा रहा है मुझे नहीं पता, आपको कुछ दिख रहा है, थोड़ा बहुत रीडेबल तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। कॉपी में कुछ दिख रहा है आपको मेरी बुक में? नहीं क्या सर। आप पढ़ नहीं? हाँ, तो बस इतना ही देख लीजिए कि पेज नंबर 294 पे ये गिवन है। तो इसमें क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, एक कॉलम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो अब हमारी रैंडम नंबर्स कितनी थी टोटल? 10। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द रैंडम नंबर्स -1। तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी बताओ? 9। काल्मोगोरोव, हाँ नहीं, कहीं कहीं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले हर जगह अलग अलग हैं। अभी हम काई स्क्वायर टेस्ट भी पढ़ेंगे, तो काई स्क्वायर टेस्ट में तो n-1 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। यहाँ पर काल्मोगोरोव के केस में उसने जो टेबल बनाई है उसके अकॉर्डिंग DOF जो है वो नंबर ऑफ द रैंडम नंबर्स के ही बराबर है। यानी कि यदि 10 रैंडम नंबर्स हैं तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 10 है। यदि नंबर 20 हो जाए तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 20 हो जाएगा। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले कॉलम में 10 पे जाना है ना। और 10 देखते ही फिर अगला कॉलम है 0.10। 0.10 का मतलब हुआ 90% कॉन्फिडेंस लेवल। उसका अगला कॉलम है 0.05। 0.05 मींस 95% कॉन्फिडेंस लेवल। और उसके अगला कॉलम है 0.01, यानी कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल। 3 कॉलम बने हुए हैं, 99%, 95% और 90%। अब हमें कौन सा कॉलम देखना होगा? जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 95%। तो उस 95% कॉलम के आगे और 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम के आगे जो वैल्यू लिखी है दैट इज 0.410। ठीक है। मैंने इस टेबल से देख लिया, आप भी देख सकते हैं अपनी उससे, आपके पास बुक हो या जो भी
है ना, जिन्होंने इशू करा ली हो तो देख लीजिएगा। तो मैं वापस आ रहा हूं अपनी शेयर स्क्रीन में, तो मुझे वैल्यू मिल गई है टेबल से 0.410। तो अब इसको बस लास्ट 1 मिनट और लगेगा मुझे इसे फिनिश करने में। ठीक है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं यहाँ नोट करूंगा। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू बाय स्मिनोरोव टेबल। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डी, है ना, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डी। So D is given 0.410. This is the value for D in the table. And you have calculated value for D is 0.15. ठीक है, तो अब बताइए 0.15 क्रिटिकल वैल्यू से कम है या ज्यादा है? कम है सर। कम है ना। तो जब भी हमारी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम होगी, इसका मतलब दिया हुआ रैंडम नंबर का सेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अब इस बात को हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, है ना, एग्जाम में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। तो इतना लिखने के बाद, ठीक है, आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी है। तो आपकी लैंग्वेज ये होगी, सिंस द क्रिटिकल वैल्यू obtained from table, नंबर डाल सकते हैं जो भी टेबल नंबर है ना। अब रेफरेंस के लिए उसे पूरा डिटेल लिख सकते हैं, टेबल नंबर सो एंड सो ऑन पेज नंबर सो एंड सो, है ना, कोई भी ऐसे डाल सकते हैं। obtained from table is 0.410 which is higher than the obtained value, which is higher than the obtained value. Hence, the given set of random number is, given set of random number represents uniform distribution up to a level of confidence of 95%। ठीक है, ये लैंग्वेज में लिखना जरूरी है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप दोनों वैल्यूज को कंपेयर करिए। यदि ऑब्टेन्ड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम है, देन इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इट इज परफेक्टली रैंडम, और परफेक्टली रैंडम फॉर ए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ 95%। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सिंस द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या उसका रिवर्स लिख सकते हैं जो हमने लिखा है। तो जैसे भी आपको सूट करे। तो इसके स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए, स्टेप भूल जाते हैं लोग, है ना। तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आई को लिस्ट करना है, फिर असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, फिर आई बाई एन करना है, फिर आई बाई एन माइनस आर आई करना है, फिर आर आई माइनस आई माइनस 1/n करना है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वही होगा, जितने रैंडम नंबर्स होंगे टेबल देखनी है, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है और उन दोनों को कंपेयर करना है, लास्ट में आंसर लिखना है। आई थिंक इट इज क्लियर। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के स्टेप्स क्लियर हैं आपको? प्रत्युष? यस सर। और तो ठीक है, आज के लिए दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड ना, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। और बाकी और किसी की कोई क्वेरी हो, अंकुर चौहान, लवकेश, है ना, या जो भी। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं रोहित हूँ सर। हाँ रोहित बोलिए। सर अगर इसमें जो कैलकुलेटेड वैल्यू सर जो डी की आई है, अगर ज्यादा आती तो सर क्या लिखते? ज्यादा आती तो आप लिखते कि द गिवन सेट ऑफ रैंडम नंबर इज नॉट रैंडम, है ना, इट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ 95%। उसमें नॉट वर्ड जुड़ जाता है बस, है ना। ओके सर। हाँ, लैंग्वेज यही रहती है, केवल उसमें नॉट आ जाता है, मतलब रिजेक्टेड हो जाता है। जो भी हम टेस्ट उसको रिजेक्ट कर देता सैंपल को, है ना। और अभी आपका सैंपल पास हुआ है,
क्योंकि वैल्यू कम है. If value is less, then the set of random number is passed for that property. Otherwise, it is fail for that property. ओके सर. Anything else? सर ये Attendance बुक तो नहीं हो रही. टेबल किया हुआ है सर, हाँ बोलिए क्या? तो जिसमें टेबल है सर, उस बुक का राइटर मतलब कि कौन सी बुक है वो? हाँ टेबल, वो नाम उसका वो है DS हीरा. ये तो मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजी थी इसकी कवर पेज फोटो. इट इज DS हीरा सिस्टम सिमुलेशन. ओके सर, ओके, थैंक यू. ठीक है. हाँ, आप इसको परचेज कर लीजिए या लाइब्रेरी में है, आप लाइब्रेरी से इशू करा लीजिए, ये आपका आना हो जाएगा, है ना. इट इज अवेलेबल इन लाइब्रेरी. तो ठीक है फिर है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर लिसनिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.